تو آج کا ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بہت ضروری کام مہینوں یا سالوں سے اٹکا ہوا ہے اور ہو نہیں رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے کام بتاؤں گی جنہیں اگر آپ آج ہی سے کرنا شروع کریں گے تو آپ کے ضروری اور جائز کام کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو چیزیں میں بتانے جا رہی ہوں یہ قرآن پاک سے ہیں، سنت سے ثابت ہیں۔ اگر آپ انہیں کریں گے تو آپ کے سارے کام انشاءاللہ بننے لگیں گے۔ اگر جو سورہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ وہ سورہ کو پڑھ لیں گے تو آپ کسی بھی حالات میں ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اور کچھ ہی دنوں میں آپ ان کاموں کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ان پر بہت سارے لوگوں نے عمل کیا ہے اور ان کی جو بھی ضرورت تھی، جو بھی حاجات تھی وہ پوری ہوئی تھی۔ ویڈیو میں ساری چیزیں بتانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیوز تھوڑا بھی ہیلپ کرتی ہیں تو ویڈیو میں ہماری موٹیویشن کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے کچھ سبسکرائبرز کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے تو کامنٹ میں اپنی دعا ضرور شیئر کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کے لیے دعا کی جائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون انسان کتنا دیکھے، ویڈیو دیکھنے والوں میں کس کی زبان کو اللہ نے کتنی قبولیت بخشی ہے کہ وہ ایک آمین کہہ دے تو ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنی دعا ضرور لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کی دعا بھی ضرور شامل کی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ سسٹر کہتی ہیں، السلام علیکم آپی، پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میری صحت اچھی ہو جائے اور میں جاب کر سکوں۔ تو ڈیئر سسٹر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی عافیت والی صحت تندرستی عطا کرے اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، آپ بہترین جگہ پر عافیت کے ساتھ کام کر پائیں۔ ایک اور سسٹر ہیں جو کہتی ہیں، آپ ہی میرے لیے دعا کرنا، میں روزانہ کا 70,000 استغفار پڑھتی ہوں، الحمدللہ میرا 56 لیکس کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں پسند کی شادی کے لیے پڑھ رہی ہوں، دعا کرنا مجھے میری محبت مل جائے، اس کی منگنی ہو گئی ہے کسی اور کے ساتھ، لیکن میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ استغفار پڑھنے والوں کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے مشکل سے نکالے گا اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں۔ تو ڈیئر سسٹر، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر اور عافیت کے ساتھ معاملے بنا دے، آپ کی شادی کے لیے آسانی کر دے، آپ کے جس انسان سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اس انسان کو آپ کے لیے خیر بنا دے۔ آپ کے لیے ایک چیز میں چھوٹی سی بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ اس انسان سے آپ کی شادی ہو، اگر آپ اس انسان سے باتیں کر رہی ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اس سے باتیں کرنا بالکل بند کر دیں اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ گناہ کو چھوڑ دیں گی تو آپ کی دعا ہے اس میں بہت زیادہ پاور آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ تہجد پڑھتی ہیں تو تہجد میں آپ سورہ یوسف، فجر اور تہجد کے درمیان سورہ یوسف پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ پسند کی شادی کے لیے بہت مفید ہے۔ وہی ایک اور سسٹر ہم سے کہتی ہیں، السلام علیکم آپی، پلیز میرے لیے دعا کیجئے کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں۔ تو ڈیئر سسٹر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور عافیت والی پریگننسی نصیب کرے۔ آپ یہ دعا نہ کرا کریں کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح، صحت مند، تندرست اولاد عطا کر دے، کیونکہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں، اگر کسی کو ویڈیو زیادہ لمبی لگ رہی ہے تو وہ اسکپ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ یہاں پر بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ دعا کے متعلق بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ضروری طور پر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے اسے پورا کلیئرلی مانگے، اس کے ساتھ ہی ہم اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی عافیت ضرور مانگے۔ کوئی کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت کے ساتھ یہ چیز عطا کرے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ پریشان تھا، اس کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، گھر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے، مجھے چھت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے، مجھے چھت دے دے۔ وہ اتنا زیادہ برے حالات میں تھا کہ وہ سڑک پہ رہنے لگا تھا، اس کا گھر بھی نہیں تھا۔ اس کو لگاتار یہ دعا کرتے ہوئے کچھ ٹائم ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک سے پولیس آئی اور جتنے بھی روڈ پر رہنے والے لوگ تھے ان سب کو جیل میں ڈال دیا۔ اب وہاں جیل میں اس کو روٹی بھی مل رہی تھی اور چھت بھی مل گئی تھی، جو اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اس کو وہ مل گیا تھا، لیکن کس طرح ملا تھا؟ قید ہو کے ملا تھا۔ تو جب سے میں نے یہ قصہ سنا ہے میں ہر بار یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو اس میں عافیت ضرور مانگو، کیونکہ جب آپ اپنی دعا میں عافیت ایڈ کروا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بیسٹسٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ سے دور کر دیتے ہیں، اور دور کرنے کے بعد آپ کے دل کو صبر اور شکر دے دیتے ہیں۔
तो आई होप कि आप भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस तरह से दुआ करेंगे। नेक्स्ट एक सिस्टर हमसे दुआ की गुजारिश करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, दुआ की गुजारिश, मेरी पसंद की शादी हो जाए, नाम लेकर दुआ कीजिएगा, समीरा और रियाज। अल्लाह ताला डियर सिस्टर समीरा आपके लिए आसानी करे कि रियाज भाई के साथ आपका खैर और आफियत के साथ आसानी के साथ शादी हो जाए और आप बहुत अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी, नेक ज़िंदगी, नमाज़ों की पाबंदी वाली ज़िंदगी गुजारें। इसी के साथ एक और सिस्टर हैं जो कहती हैं आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे अम्मी अब्बू दीन की राह पर नहीं चलते हैं, वो ताजिया वगैरह बनाते हैं जो हराम है, मैं बताती हूँ तो मुझे वहाबी बोलते हैं और बुरा भला बोलते हैं। मैं एक शख्स को पसंद करती हूँ, उसका रिश्ता आया है मेरे लिए, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। मैं जब बोली मुझे उसी से करना है, पसंद करती हूँ, तो मुझे बहुत मारा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे अम्मी अब्बू को हिदायत अता करे अल्लाह और मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से हो जाए। तो डियर सिस्टर अल्लाह ताला से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए। जिस इंसान से आपका रिश्ता आया हुआ है, जिसे आप पसंद करती हैं, उसके लिए आपके माँ बाप का दिल नरम कर दे और आपकी शादी खैर और आफियत के साथ उस इंसान से बहुत खुशी से हो जाए और आप इस इंसान के साथ नेक और अच्छे अमाल वाली आफियत वाली जिंदगी गुजारें। माँ बाप के दिल की नरमी के लिए एक काम कर सकती हैं, वो ये है कि रोजाना 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपने वालिदैन को जब भी पानी दें तो उस पानी पे दम करके आप अपने वालिदैन को पिला सकती हैं। अगर कुछ ज्यादा मैटर खराब हो चुका है, वो आपके हाथ से पानी वगैरह भी नहीं लेते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आपके वालिदैन आपके आसपास रहें तो उनके ऊपर इस तरह से आप दुरूद शरीफ दम कर दें कि उनको पता ना चले। इंशाल्लाह इससे उनका दिल बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। तो चलें अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको जब ये अमल शुरू करना है तो सबसे मेन चीज़ जो पहली आपकी इसमें आती है वो है कि आपका काम जायज़ काम होना चाहिए, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस काम को आपको शुरू करना है उस दिन से जिस दिन जुमा हो, जुमे के दिन आपको ये चीज़ शुरू करनी है, क्योंकि जुमे का जो दिन है वो दिनों का सरदार है और इस दिन आपको जो काम सबसे पहला करना है वो है इस दिन आपको सदका देना शुरू करना है, क्योंकि सदका वो चीज़ है जो सारी रुकावटों को, मुसीबतों को, परेशानियों को टालता है। इसलिए जो भी काम के लिए आपने दुआ करना है, जो भी काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, उसकी नियत रखते हुए, उसकी नियत को ध्यान में रखते हुए सदका देना शुरू कीजिए। अब आप या तो रोजाना सदका दे सकते हैं या फिर हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। जैसी आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आप सदका दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रोजाना सदका दें, या फिर आपके घर के आसपास बर्ड्स आते हैं या फिर बिल्लियां होती हैं या फिर डॉग्स होते हैं, जो भी जानवर हैं, आप उनके लिए दाना रख सकते हैं, खाना रख सकते हैं। छत पर बर्ड्स के लिए आप बाजरा रख दें, पानी डाल दें। किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाएं जिसका आपको लगता है कि वो भूखा है, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें, क्योंकि ये जो है ना ये सदक़े में गिना जाता है। ये जो चीज़ें हम करते हैं ये भी सदक़े में गिनी जाती हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं मिल रहा तो आपके आसपास कोई बिल्ली होगी, उस बिल्ली को एक कटोरी में दूध पिला दे। कोई डॉग होगा उसको 2 बिस्किट का पैकेट मंगा के उसको बिस्किट खिला दे, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ना इनकी दुआएं बहुत खामोश होती है, दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है उसके लिए आपको कुछ तस्बीहात पढ़नी है। तस्बीहात कुछ अलग अलग तरीके की हैं, जिसमें आपको सबसे मेन चीज़ जो अपनी करनी है, जो भी हाजत आपकी है, जो भी दुआ आपकी है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, 100 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जब आपकी एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने 100 टाइम्स अस्तगफार की तस्बीह करनी है। इस तस्बीह में आपने थोड़ा बड़ा वाला इस्तगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये तस्बीह आपने 100 मरतबा करनी है। इसके बाद आपने 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़नी है। इस तस्बीह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे ना तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। तो आपने 100 मरतबा ये वाली तस्बीह पढ़नी है। इसके अलावा चौथी तस्बीह जो आपने दूसरे टास्क में पढ़नी है वो है दुरूद इब्राहिम। आपको दुरूद इब्राहिम ही पढ़ना है, कोई भी दूसरा दुरूद शरीफ आप इसमें नहीं पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम ही आपने इसमें पढ़ना है। अगर ये तस्बीहात आप अपने बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं या फिर औलाद के लिए पढ़ रहे हैं या फिर घर के किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे एज लाइक अगर आप ये बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सारी तस्बीहात पढ़ने के बाद आपको वो काम करना शुरू कर देना है। या फिर जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं, एज लाइक औलाद के लिए पढ़ रहे हैं, पसंद की शादी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको दुआ करनी है। और जब भी आप अपनी हाजत के लिए दुआ करेंगे तो इन 4 तस्बीहात को आप 100 मरतबा ज़रूर पढ़ेंगे। दिन में कम से कम एक बार ये चारों तस्बीह आपको ज़रूर पढ़नी है।
हाँ, ये हो सकता है कि कभी आपके पास वक्त की कमी हो, आपके पास वक्त ना हो, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करेंगे और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा भी पढ़ लीजिएगा। तीसरे नंबर पर जो बताऊँगी, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे, आपकी नीयत है कि आपको वो चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए आपने हर दिन तहज्जुद ज़रूर पढ़नी है। तहज्जुद एक ऐसा तीर है जो अपने निशाना कभी नहीं चूकता। ये ऐसी नमाज है जो हर इंसान के लिए खैर ही लेके आई है। हर इंसान ने, जिसने भी इसको अदा किया है, उसके लिए इसने खैर ही की है। तहज्जुद के लिए आपको फजर से 1 घंटा पहले उठना है। आपने तहज्जुद पढ़नी है। आप 8 या 12 रकात जो आप चाहें पढ़ सकते हैं। तहज्जुद में अगर आप लव मैरिज के लिए पढ़ रहे हैं तो ख़ास तौर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप तहज्जुद और फजर के दरमियान सूरह यूसुफ ज़रूर पढ़ें। अगर आप औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद और फजर के दरमियान 1000 मरतबा अस्तगफार ज़रूर पढ़ें। अगर आप बिज़नेस के लिए पढ़ रहे हैं तो एक दुआ है जो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दुआ है। इंशाल्लाह इसे आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। वो है, या वहाबु हबली मिन निअमतिन फिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। ये बहुत छोटी सी दुआ है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। मैं एक बार और पढ़ के आपको सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। या वहाबु हबली फिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। इंशाल्लाह इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और या वहाबों की जो तस्बीह है, आप किसी भी काम के लिए पढ़ सकते हैं। चौथे नंबर पर आपको जो करना है वो है सूरह बकरा। मैं आपको बता रही हूँ सूरह बकरा को किस तरह पढ़ना है। अगर आप इस सूरह को पढ़ना अपनी लाइफ में शुरू कर देते हैं तो आपको गारंटीड किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फजर की नमाज के बाद सूरह बकरा पढ़ना है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सूरह बकरा को कैसे पढ़ना है और आपके पास टाइम की कमी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सूरह बकरा को आप अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे कि सूरह बकरा जो है वो 2.5 पारे की है, हम सब जानते हैं। तो आप सूरह बकरा को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक पारा आप फजर बाद पढ़ लें। वैसे तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्री टाइम इंसान के पास फजर के बाद ही होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 पारे फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा आपका, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जब आप डेली बेसिस पे पढ़ने लगेंगे तो और भी कम टाइम लगेगा। उसके बाद आप बाकी का जो हिस्सा बच रहा है वो दिन के किसी भी टाइम में जब आपको टाइम मिलता है आप पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका जो भी रुका हुआ काम होगा वो हल हो जाएगा। चाहे वीज़ा नहीं मिल रहा हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही हो, चाहे आपके हस्बैंड के पास बिजनेस नहीं हो, जॉब नहीं हो, आपके पास कोई काम नहीं हो, बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं हो रही हो, बच्चों की फीस के लिए पैसे ना हो, घर के राशन के लिए पैसे ना हो, आपके लिए अच्छे रिश्ते ना आते हों, जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो वो मुकर गया हो, शादी के लिए आप बात नहीं कर रहा हो, हर एक एक चीज के लिए ये आपको फायदा देने वाला हो। आप बिजनेस करें, उस बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं दिख रही हो, बहुत फायदा इंशाल्लाह आप इसे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। सूरह बकरा ऐसा है कि इससे 99% लोगों के काम बने हैं और ये कुरान से साबित है। इंशाल्लाह जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे ना तो विद इन 15 डेज आपको विजिबल रिजल्ट अपनी लाइफ में दिखेगा। अगर जो मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई है आप इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो ज़रूर आपको बेहतरीन रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। अगर आपकी लाइफ में बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, किसी ने जादू कर दिया है, तावीज़ वगैरह कर दिया है, आपके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, आपकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर थकन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको लगता है कि लोग आपसे हसद करते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, हर काम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कुछ भी आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव है, रुकावटें हैं, परेशानी है, हर इस चीज़ को ये दूर करने पे कादिर है। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ज़्यादा ताकत दी हुई है क्योंकि इससे शैतान भाग जाता है और वही आपके कामों में रुकावट डाल रहा होता है। बुरी ताकतें हैं जो आपके कामों को रोक रही होती हैं, ख़त्म कर रही होती हैं, आपकी चीज़ें पूरी नहीं होने देती हैं। तो ये 1000% गारंटी वाली बात है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह बकरा पढ़ना एक बरकत है और इसे छोड़ना एक इच्छा है। इसलिए हमेशा बरकत को अपने साथ रखें और अपनी जिंदगी को आसान करें। तो इंशाल्लाह अगर आप ये सारे अमल करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट खुद ही दिखेगा। भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे लोगों को तो इंशाल्लाह 15 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को अगर टाइम लगता है तो टाइम लगता भी है तो उन्हें इस चीज को छोड़ना नहीं है क्योंकि वो जायज काम के लिए दुआ कर रहे हैं। तो उन्हें अल्लाह ताला से उम्मीद बनाए रखना है। 2-4 दिन की उम्मीद नहीं,
کم سے کم آپ اس چیز کے لیے 6 مہینے کا ٹارگٹ لے کے چلے، انشاءاللہ 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 میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کر کے عطا کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، تو آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ جلد ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔